Hello students and welcome back to my YouTube channel. This side Gaurangi Pundi. So in this video we'll be covering class 12th legal studies. ये special series है for the students जिनका exam है boards in 2026 and many students are having their half yearlies in September, so this video is specially for you. In this video we'll be covering unit 1 which is judiciary. इस chapter judiciary के अंदर we have subdivision of the syllabus A, B, C, D and E. There are 5 parts: structure, hierarchy of courts and legal officers in India, constitution, roles and impartiality, appointment, retirement and removal of judges, tribunals, court and judicial review. So we'll be covering each topic side by side. Kindly watch the whole video. All the notes are also provided, and still if you need handwritten notes or the basic notes PPT, you can join my Telegram channel, and the link to the Telegram channel is given in the comment section. It is already pinned, so you can check it from there. Now, why is the structure, hierarchy of courts important? See, this topic is very important, not only for the board exam perspective, but also to understand how the Indian legal system actually works in real life. So let's get started. Structure, hierarchy of courts and legal officers. In this we'll be studying Indian judicial system कि इंडिया का judicial system है क्या. So इंडिया का judicial system है फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम. फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो रखी है. दीदी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो हमारे योगी जी हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में जो पावर है वो क्या हो रखी है? दैट इज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड. बट जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि वो एक सिस्टम है, यानी कि वन सिस्टम फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट लॉज. जुडिशरी का जो सिस्टम है वो एक है. वी सी इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स होते हैं, तो कोई सिंगल कोर्ट तो उसे हैंडल नहीं कर सकता. इसलिए हम लोग हायरार्की, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स को फॉलो करते हैं, हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक. सुप्रीम कोर्ट फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड देन स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल. Why? क्योंकि इस सिस्टम की वजह से इट इंश्योर्स जस्टिस डिलीवर होगी एफिशिएंटली, और उन लोगों को जो जाके अपील नहीं कर पाते, और द पीपल हु आर विलिंग टू अपील बट दे डोंट हैव सफिशिएंट मीन्स, या फिर वो लोग जो लोअर कोर्ट के जो जजमेंट है उससे खुश नहीं है, तो वो आगे के अपने ऑल्टरनेटिव्स यानी कि हायर कोर्ट्स पे जा सकते हैं फॉर द जजमेंट. बिकॉज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन देयर अकर्स अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट, एंड उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए. This is the whole Indian judicial system. This is the hierarchical structure जो हमारे यहाँ follow होता है. Highest Supreme Court followed by the High Court, then district courts and subordinate courts and then specialized tribunals. What are tribunals? Tribunals क्या होते हैं? एक new term है. We'll cover in the further video. Starting with the Supreme Court of India. At the top of this hierarchy, we have the Supreme Court of India. It is the highest judicial body. याद रखना, इससे ऊपर कुछ नहीं. The highest judicial body of the country. It is also known as the apex court. याद रखना, the apex court. Established under Article 124, and it has the final authority in interpreting the constitution and the law. It came to existence on 28 January 1950. इसने फेडरल कोर्ट एंड जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल को रिप्लेस करा था. अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल क्या हुआ करता था, एंड इफ द कमेंट इज करेक्ट आई विल पिन दैट कमेंट. इनिशियली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसके अंदर एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और 7 जजेस की बेंच हुआ करती थी. बट अब जो करंट टाइम है उसमें 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग CGI, यानी कि 33 जजेस प्लस 1 CGI. पहले क्या थे? पहले 7 जजेस और एक CGI था, यानी कि 8 थे. अब टोटल 34. स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है. वाई? बिकॉज द केसेस हैव इंक्रीज, सो द स्ट्रेंथ हैज ऑल्सो इंक्रीज. मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. 2019 के अमेंडमेंट की वजह से 30 से हमने 33 कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की 3 मेन जुरिस्डिक्शंस होती हैं जो आपकी बुक में समझाई गई हैं: ओरिजिनल, अपीलिएट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. अब ये ओरिजिनल, एडवाइजरी, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? देखो, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है
the original jurisdiction, it means that it can hear directly cases such as disputes between the union and states or between टू स्टेट्स, यानी कि ये ऐसे डिस्प्यूट्स को डायरेक्टली सुन सकते हैं जो यूनियन और स्टेट के बीच में हो या फिर दो स्टेट्स के बीच में हो। कुछ ऐसी लड़ाई जो दो स्टेट्स के बीच में, फॉर एग्जांपल यूपी महाराष्ट्र, यूपी हरियाणा, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तुम्हारा आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, ऐसे डिस्प्यूट्स जो होते हैं ये डायरेक्टली हियर कर सकते हैं इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। कौन? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आती है तुम्हारी अपीलिएट जुरिसडिक्शन। अपीलिएट जुरिसडिक्शन क्या होती है? अपीलिएट जुरिसडिक्शन के अंदर आता है इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सर्टेन ट्राइब्यूनल्स। जो हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट में जो चीज़ें आती हैं ये वो वाले डिस्प्यूट्स को सुनता है। एंड नेक्स्ट इज एडवाइजरी। व्हाट इज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को हम आर्टिकल 143 के अंदर एंटरटेन करते हैं एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी इसको बोला जाता है। क्या होता है इसके अंदर? अंडर दिस आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस। कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रेसिडेंट को जानने हैं, दे कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इसके डिसीजंस बाइंडिंग है ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वी हैव इज हाई कोर्ट। बिलो सुप्रीम कोर्ट वी हैव द हाई कोर्ट्स। ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। सबके अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं। दो देर आर समटाइम्स कि एक हाई कोर्ट कुछ एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के ज़्यादा का भी हाई कोर्ट हो सकता है। हाई कोर्ट क्या क्या है? In India, we have 25 high courts. Each high court has jurisdiction over a state, a group of states, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट का भी वो हो सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर वन मार्कर। क्या है दीदी? ये जो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स थे एंड द न्यूएस्ट हाई कोर्ट। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा एंड इलाहाबाद एंड द न्यूएस्ट हाई कोर्ट इज ऑफ आंध्र प्रदेश विच वॉज मेड इन 2019 एंड बिलो हाई कोर्ट इक्वल्स टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स लाइक सिविल एंड क्रिमिनल। ये क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या होती है, यानी कि द मैटर वेयर दे कैन यूटिलाइज देयर पावर। हाउ, वेयर, टिल वेयर? सो दे हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन सर्टेन केसेस लाइक, जैसे कि रिट पिटिशन हो गया, उसके अंदर दे हैव सर्टेन जुरिसडिक्शन। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 2026। इवन दे ऑल्सो हैव अपीलिएट जुरिसडिक्शन जिसके अंदर ये अपील सुन सकते हैं। मान लो कि कोई लोअर कोर्ट था जिसके आपको जजमेंट समझ नहीं आई विद इन देयर स्टेट, लेकिन उनके स्टेट के अंदर ही, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के हैं, यूपी का कोई आपके ही यूपी के स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ के लोअर कोर्ट की जजमेंट से कोई खुश नहीं है या फिर देयर आर सम इश्यूज हैपनिंग, तो यू कैन अपील टू दिस हाई कोर्ट और ये उसकी अपीलिएट जुरिसडिक्शन में सुन सकते हैं। हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जितने भी होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। दिस मीन्स दैट दे इंश्योर दैट लोअर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं और एक अच्छी तरह से अपना एक मैकेनिज्म चला रहे हैं जिसकी वजह से जो जस्टिस है वो डिलीवर हो चुके अकॉर्डिंग टू द लॉ। समझ आया? देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब डिस्ट्रिक्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं? दीज कोर्ट्स फंक्शन बिलो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के नीचे आते हैं। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं और उसका एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। नाउ द फंक्शन इज वेरी सिंपल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस हैंडल कर सकते हैं। जब कोई जज सिविल केस को हैंडल करता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है, जब वो क्रिमिनल केस को करता है तो सेशन जज बोला जाता है। और जो मेट्रोपॉलिटन सेशन जजेस हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो आपके लार्ज सिटीज़ के अंदर होते हैं। ये भी अपीयर सुन सकते हैं फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इनके पास भी पावर है टू ट्राई सीरियस क्रिमिनल केसेस लाइक मर्डर, रॉबरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना सेशन जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज का डिफरेंस, यानी कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस के जो प्रिसाइड करेगा उसके हिसाब से वहाँ पे जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट का भी वैसे सिंपल है। लोएस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की पे होते हैं। यहाँ पे तो दो तरह पे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट और सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन आ जाता है एंड इन क्रिमिनल केसेस यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाता है। ये मैंने पूरी हायरार्की बना रखी है सिविल साइड पे भी एंड क्रिमिनल साइड पे भी। यू कैन यूज दिस एज इट इज इन योर आंसर राइटिंग।
जब आप आंसर लिखेंगे अपना 5 मार्क का, उसके अंदर आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट जज है, सब कोर्ट सीनियर सिविल जज है, देन प्रिंसिपल जज है, सिविल जज है, एंड देन मुंसिफ कोर्ट है. एग्जैक्टली हेयर सेशन जज, देन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास. दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केस, कौन सी कंडीशन का है, क्रिमिनल साइड है या फिर सिविल साइड है. Moving further, we have the salient features of Indian judiciary. What are the salient features of judiciary? We have a common law system which we have taken from British system. अभी common law system क्या होता है देखते हैं आगे. Courts give judgment, these become precedent for lower courts. यानी कि जो courts होते हैं वो judgment देते हैं और फिर lower courts भी इनके ही presidents पे, यानी कि इनके ही जो ये बोलते हैं उसी के हिसाब से वो चलती हैं. Common law system में क्या होता है? Common law system में judiciary बहुत important role play करती है. यहाँ पे जो लॉ मेकिंग है, जो पावर है लॉ बनाने का, वो किसके हाथ में आ जाता है? आपके जुडिशरी के हाथ में आ जाता है. सिविल लॉ के अंदर जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, वहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही लॉ बना सकते हैं, जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती. और इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं कॉमन लॉ सिस्टम. अब दीदी कॉमन लॉ सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन करो. सिंपल है, कॉमन लॉ सिस्टम को हम एक तरह से एडवर्सेरियल सिस्टम भी बोल सकते हैं. मॉडल्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि जब डिस्प्यूट आता है, कोई लड़ाई हो रही है, सो अब आगे क्या होगा, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो 2 तरीके होते हैं. एक होता है एडवर्सेरियल और एक होता है इंक्विसिटोरियल. ये इंक्विसिटोरियल मोस्ट ज़्यादा वहाँ वाली कंट्रीज़ में फॉलो होता है जहाँ पे सिविल लॉ सिस्टम है, और एडवर्सेरियल कहाँ पे होता है? जहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम है. अब दीदी आप कॉमन लॉ, एडवर्सेरियल, इंक्विसिटोरियल, ये नए नए वर्ड्स हैं, क्या होता है? देखो, जब आप अपनी यूनिट 2 खोलोगे एडीआर, उसमें भी आपको सबसे पहले एडवर्सेरियल और इंक्विसिटोरियल ही मिलेगा टॉपिक. तो इस क्वेश्चन को अपने 5 मार्क के हिसाब से एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर कर लो. Send me this answer on Telegram. I'll send the best answer in the group. Also, I will share my answer also, which I have written in my exam, in my board exam. So ये आंसर अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपको हाफ ईयरली में भी मिलेगा, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आएगा. एडवर्सेरियल इंक्विसिटोरियल में से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, एक सिस्टम को एक्सप्लेन करो. अब क्या है ये दीदी? एडवर्सेरियल सिस्टम वो होता है जब दोनों तरह के लॉयर्स जो हैं वो अपनी साइड ऑफ द केस रखते हैं कि जी मेरे जो क्लाइंट है उसकी ये कहानी थी, और दूसरा कहेगा मेरे क्लाइंट की ये कहानी थी. जो जज है वो एज अ न्यूट्रल इंसान न्यूट्रल जजमेंट पास करेगा बेस्ड ऑन एविडेंसेस, फैक्ट्स, जो आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, जो डिसीजंस जो भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जितनी भी फैक्ट्स हैं उनके बेसिस पे ही होंगे, जो एविडेंस है उसके बेसिस पे होंगे, जो आप डिस्कशंस डेलिब्रेशंस करेंगे उसके बेसिस पे होंगे. एडवर्सेरियल सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया. जैसे हमारे इंडिया के अंदर 2 लॉयर्स होते हैं, दोनों जो लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं? वो आपको अपनी तरफ की कहानी बताएंगे, दोनों के दोनों अपनी पार्टी को बिल्कुल ही क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे. और एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर लॉयर्स का ही रोल मेन होता है. इन शॉर्ट, इफ आई एक्सप्लेन द एडवर्सेरियल सिस्टम, जिसमें आपको ट्रायल्स होंगे, 2 पार्टी होगी, एक साइड प्रोसिक्यूशन होगा, एक साइड डिफेंस होगा, दोनों के दोनों अपनी आर्ग्यूमेंट्स देंगे, अपने एविडेंसेस जज के सामने रखेंगे. फिर जो जज है वो अपना जो डिसीजन है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेगा और एक्टिवली जो है केस को जजमेंट देगा, सिंपल इम्पार्शियल रेफरी की तरह. ये तो हो गया तुम्हारा एडवर्सेरियल सिस्टम. अब आ जाता है इंक्विसिटोरियल सिस्टम. इंक्विसिटोरियल इसका जस्ट ऑपोजिट है. इसके अंदर जो है, जो तुम्हारा जज है वो ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू द लॉयर्स. जो जज एक्टिव रोल प्ले करेगा वो इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स को, खुद क्वेश्चन करेगा विटनेस को डायरेक्टली और ट्राई करेगा ट्रुथ फाइंड करने की. एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर जहाँ पे जो जज है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रेफरी था, यहाँ पे जो तुम्हारे इंक्विसिटोरियल है वो इंक्विसिटोरियल के अंदर वो खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, खुद इन्वेस्टिगेट करता है, खुद ही एंटर्स इनटू द शू ऑफ इन्वेस्टिगेटर. इसलिए इस सिस्टम को इंक्विसिटोरियल सिस्टम कहा जाता है. So this is adversarial system and inquisitorial system. Next we have legal officers in India. So legal officers in India, कोर्ट है तो कोर्ट के साथ कुछ ऑफिसर्स भी होंगे जो उनको असिस्ट करेंगे. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, जो बिल्कुल हाईएस्ट पोस्ट पे होगा. ही इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76. अब आप कैसे बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल? आपकी जो क्वालिफिकेशन है, इट शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज. जो सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन है वही आपकी होनी चाहिए. और ये क्या, इनका क्या काम है? ही गिव्स लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
दे एंजॉय एवरी राइट, जैसे कि आप किसी भी कोर्ट में अपीयर कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की डिबेट्स में भी जो है क्या कर सकते हो, पार्ट ले सकते हो, लेकिन याद रखना दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट। कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है कि आप मतलब कि जो पार्लियामेंट की सभा है उसकी असेंबली में स्पीचेस डिबेट्स में आप वोट नहीं कर सकते। एक अटॉर्नी जनरल के अंडर आपको एक सोलिसिटर जनरल मिलेगा और साथ ही साथ 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल्स भी मिलेंगे एक अटॉर्नी जनरल के अंदर, क्योंकि ही मतलब कि ही दे गेट असिस्टेंट बाय देम इन हैंडलिंग द केसेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन एट द स्टेट लेवल वी हैव द एडवोकेट जनरल। बहुत आसान है, ही इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 165। ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट। ये स्टेट लेवल पे आ गया, वो थे आपके यूनियन लेवल पे, ये हैं आपके स्टेट लेवल पे। इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट की जज की है, उनकी क्वालिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट के जज की। यहाँ पे ये लीगल एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, वो एडवाइस देते थे यूनियन को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यहाँ पे आ गया गवर्नर।